السلام علیکم طلباء، آج ہم جماعتوں کے مطالعہ پاکستان کے دوسرے لیسن کے ساتھ، دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تاریخ پاکستان حصہ اول یعنی جماعت نہم میں پڑھے جانے والے آخری باب کی دہرائی کی تھی، اس کے چیدہ نکات کو ہم نے دہرایا تھا، اور اس حوالے سے اب ہم نے یہ جانا کہ تاریخ پاکستان حصہ دوم سے مراد یہ ہے کہ 1970 کے بعد یعنی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جو بچا کچا پاکستان، آج کا پاکستان جو ہمارے پاس ہے، اس نے جو اپنے نئے سفر کا آغاز کیا تو وہ کس طرح ہوا، اور اس میں پھر آگے کس طرح سے مختلف طرح کی اصلاحات لائی جاتی رہیں اور کس طرح سے پھر نظام حکومت چلایا گیا۔ ہم نے پچھلے لیکچر کے آخری حصہ میں دیکھا تھا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے اور جن کی پارٹی نے 1970 میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں پاکستان، آج کے پاکستان یعنی اس وقت کے مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل کی تھی، اور یوں پھر جب پاکستان دو لفت ہو گیا اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو بچے ہوئے پاکستان میں انہی کی اکثریت تھی، سو اقتدار اس وقت کے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد یحییٰ خان نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے سپرد کیا، جو پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر بنے، اور انہوں نے اپنی پہلی ہی تاریخی جو تقریر کی اس میں عوام کا حوصلہ اور ان کے جذبے کو کس طرح سے بلند کیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو دور میں ہونے والی اصلاحات ہیں 1971 سے 1977 کے دوران کی معاشی اصلاحات، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے یا اہم نقطہ ہوگا یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان نے پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کس طرح سے ترقی کی اور ترقی کے مناظر طے کیے۔ تو ان معاشی اصلاحات میں جو بڑا ہی اہم چیز ہم دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے وہ ہے مختلف اداروں کو قومی تحویل میں لینا۔ آج اس لیکچر میں ہم دو پوائنٹس پڑھیں گے، ایک صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا اور دوسرا ہمارا نقطہ ہوگا بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا۔ اس کے علاوہ اس کے آگے ہم اگلے نکات میں بھی پڑھیں گے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو جو ایک سوشلسٹ تھے اور ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جتنے بھی ادارے ملک میں کام کر رہے ہیں ان سب کو قومیایا جائے، مطلب نیشنلائز کیا جائے یا قومی تحویل میں لیا جائے، تاکہ تمام ادارے، ایک تو یہ ان کا نظریہ تھا کہ سرکاری سرپرستی میں کام کرے، ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے، اور دوسری جو بڑی عام بات تھی کہ اس وقت جو نجی کمپنیاں یا نجی ادارے کام کر رہے تھے ان میں سے اکثریت اس طرح کے تھے جو اپنے ملازمین کو وہ سہولتیں مہیا نہیں کرتے تھے جو ان کا حق تھا یا جو سرکاری اداروں میں حاصل تھیں۔ تو پورے ملک میں ایک سا نظام لانے کے لیے اور تمام تر اداروں کو ایک پیج پر لانے کے لیے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ پاکستان کے مختلف اداروں کو قومی تحویل میں لیا۔ ان کو ہم مختلف پوائنٹس کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو جو پہلا آج کا ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ ہے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ میں چاہوں گا کہ ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 2 سے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا، نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز۔ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا، اور بدقسمتی سے آج بھی ہمیں یہ باز گشت سنائی دیتی ہے کہ شاید آج بھی بہت سا وقت گزرنے کے بعد بھی اور بہت سی اصلاحات، بہت سی آئینی ترامیم کے بعد بھی ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے وسائل پر اشرافیہ کا قبضہ ہے، اور آج بھی ان 22 خاندانوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے،
19 कंपनियों को जारी किए गए 10 करोड़ से जायद के सनती लाइसेंस गैर कानूनी करार दे दिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में सनती तरक्की और इस्तेहकाम को अवामी तरक्की के लिए जरूरी क्या करते थे। सनत इंडस्ट्री, ज़ाहिर है कि जिस मुल्क में ज़्यादा सनत होगी, ज़्यादा इंडस्ट्री होगी, उसमें उतना ही ज़्यादा इम्कानात होंगे मुकामी लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलने के। और उनके दिल में अवाम की भलाई का जज्बा था। वो सरमायादारों, दौलतमंदों और कारखानादारों की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करते थे। हमने देखा है बहुत से, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से हालात खुद भी जायजा लिया होगा और आपने बहुत से ड्रामों में या फिल्मों में ऐसे मनाजर देखे होंगे जहाँ पे जो सरमायादार होता है वो किस तरह से इस्तेहसाल करता है और वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों और लोगों को किस तरह से वो उनसे काम ज्यादा लेते हैं और उनको मुआवजा काम देते हैं, या जो और बहुत सी चीजें उनका हक है। और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ कारखानों में, मुख्तलिफ मिलों में, मुख्तलिफ सनतों में कई दफ़ा ऐसे हालात होते हैं जिनमें वर्करों को, जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उन्हें जो हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत होती है, इदारे की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम वो नहीं किए जाते और उनके लिए कई दफ़ा वहाँ पे काम करना ख़तरे से खाली नहीं होता। और हमने बहुत सी ऐसी मिसालें देखी हुई हैं जिनमें उन लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है और फिर उनका और उनके ख़ानदानों का कोई पुरसानियाद नहीं होता। तो इस सोच के तहत जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन सारे इदारों को कौमी तहवील में लेना शुरू किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो सनतें थी जिनमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के वर्कर्स काम करते थे, उन्हें कौमी तहवील में लेना वो ज़रूरी समझते थे। अवाम को उनकी नाइंसाफ़ी से निजात दिलाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 2 जनवरी 1972 को एक आर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत 10 बड़ी सनतों को सरकारी कंट्रोल में लेने का ऐलान किया। कौमी तहवील में दी गई सनतों में अहम दर्ज थी। अब कौन कौन सी सनतें हैं? बिलखुसूस वो 10 बड़ी सनतें जो उन्होंने कौमी तहवील में ली। और नंबर 1, पुर्जे जोड़कर मोटर गाड़ियाँ बनाने की सनत, जिसे हम कहते हैं कि यहाँ पर असेंबल किया जाता है, जब उनको असेंबल जो गाड़ियों की सनत थी। और दूसरे नंबर पे भारी और बुनियादी केमिकल की सनत, बुनियादी ज़रूरियात का सामान बनाने की सनत, फौलाद साजी और लोहे की सनत, भारी मशीनरी की सनत, पेट्रोकेमिकल्स की सनत, सीमेंट की सनत, मुफाद आमा की सर्विसेज के तहत आने वाली सनत और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं जिनका ताल्लुक आवाम की फलाह से या उनके आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल से है, तो उन्हें मुफाद आमा की सर्विसेज के तहत आने वाली सनत कहा जाता है। और इसमें सिर्फ प्रोडक्शन वाले यूनिट्स ही नहीं होते, इसमें बहुत सी ऐसी सर्विसेज भी शामिल होती हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं, बहुत से ऐसे महकमाजात हैं जिनका काम आवाम को सहूलियात मुहैया करना है, जो बराह रास्त कोई चीज़ें बनाते नहीं हैं, उनकी प्रोडक्ट्स नहीं होती, लेकिन वो आवाम को खिदमात देते हैं। और ट्रैक्टर प्लांट तैयार करने की सनत, भारी सामान बनाए बिजली की सनत, तो ऐसी बहुत सारी सनतें अगरचे बहुत कम उस वक्त पाकिस्तान में थी। दुनिया के मुकाबले में हमारे पास बहुत ज़्यादा सनती तरक्की नहीं थी, बहुत कम सनतें थी, लेकिन जो भी थी उनमें से भी लोगों का इस्तेहसाल किया जाता था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये मुनासिब ख्याल किया कि उनको कौमी तहवील में लिया जाए ताकि वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों को उनका हक दिलाया जा सके। सनती इस्लाहात के तहत 20 सनती इदारों के डायरेक्टर बरतरफ कर दिए गए और उनकी मैनेजिंग एजेंसियाँ ख़त्म कर दी गई। यानी उनके ऊपर जो कंट्रोल था, जो अथॉरिटी थी उनकी, जो मालिकान की, वो ख़त्म कर दी गई। हर सनती इदारे के इंतज़ामी अमूर को चलाने के लिए अलहदा इंतज़ामी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्हें कहते हैं, मुकर्रर किए गए। 16 जनवरी 1972 को मुल्की मुफाद के तहत मज़ीद 11 सनती इदारे कौमी तहवील में ले लिए गए। भुट्टो हुकूमत के दर्जबाला इक़दामात से पाकिस्तान में सनती तरक्की हुई और इक़्तिसादी इस्तेहकाम पैदा हुआ, क्योंकि हुकूमत उसमें दिलचस्पी लेती थी। हुकूमत ने ना सिर्फ ये किया कि उन सनतों को कौमी तहवील में लिया, बल्कि उसमें इन्वेस्ट किया, अपने बजट का बहुत सारा हिस्सा उनकी तरक्की के लिए रखा। और उसके पीछे जो नज़रिया, जैसा मैंने पहले बताया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये था कि वहाँ पे काम करने वाले मुलाजमीन को उनके तमाम तर बुनियादी हुकूक मिले, ताकि वो भी जब बहुत सी मेहनत करते हैं तो उनके ख़ानदान की कफ़ालत बेहतर अंदाज में हो सके।
और दूसरा जो पॉइंट है हमारा आज का इस लेक्चर का, वो है बैंकों और बीमा कंपनियों को भी कौमी तहवील में लिया। बड़े बड़े सरमायादार खानदानों ने अपने अपने निजी बैंक और बीमा कंपनियां बना रखी थी, तो ये भी आवाम के इस्तेसाल का एक तरीका था, जिससे सरमायादाराना निज़ाम को बहुत तक़वियत मिल रही थी। और ये दुनिया में या तो सरमायादाराना निज़ाम चल रहा था उस वक्त, या फिर सोशलिज्म की आवाज़ उस दौर में बहुत थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सोशलिस्ट नज़रिया के हामिल थे, इसलिए उन्होंने उस सोशलिज्म के नज़रिए को पाकिस्तान में तरवीज दी और उसके तहत तमाम ये जो सरमायादाराना निज़ाम के जो बड़े बड़े पहलू थे उन्होंने उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की। हुकूमत को इन निजी बैंकों और बीमा कंपनियों से कोई खास फायदा न था, चुनांचे हुकूमत ने मुल्क के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए 19 मार्च 1972 को तमाम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां कौमी मलकियत में ले ली और उन्हें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के तहत इकट्ठा कर दिया। और आज भी हम देखते हैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पाकिस्तान की सरकारी सतह पर जो इंश्योरेंस काम कर रही है कंपनी, वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। अगरचे एक बार फिर से दिलचस्प बात जो आप लोगों के जहन में आ सकती है सवाल कि फिर इस वक्त हम ये सारे इदारों को देखते हैं कि एक बार फिर से ये निजी इदारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनको कौमी तहवील में ले लिया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1988 में इक़्तिदार में आई, बहुत लंबी जिलावतनी काटने के बाद जनरल ज़िया-उल-हक़ इसके आगे हम बढ़े गए। जनरल ज़िया-उल-हक़ ने जब मार्शल लॉ लगाया 1977 के इंतखाबात के नतीजे में जो एक तहरीक चली और धांधली का शोर मचा, तो जब जनरल ज़िया-उल-हक़ ने जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, तो फिर एक लंबी जिलावतनी भुट्टो ख़ानदान को उसी दौरान में भुट्टो साहब का इंतकाल होता है, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है अदालत की तरफ से। तो उनका ख़ानदान जो है जिलावतनी काट कर जब वापस आते हैं 1986 में, और 1988 के आम इंतखाबात जनाब जनरल ज़िया-उल-हक़ की वफ़ात के बाद होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करती है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बार फिर से पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बनकर पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाती हैं। तो पीपल्स पार्टी ने अपने इस दौरे इक़्तिदार या दौरे हुकूमत के दौरान एक जो पॉलिसी अपनाई वो उस पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ थी, उसके मुखालिफ थी और उससे तज़ाद रखती थी, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की 88 और फिर 93 में वो दोबारा वज़ीर आज़म बनी और 93 में भी वज़ीर आज़म बनी। तो उन्होंने तेज़ी से बहुत से इदारों को जो कमियाए गए थे, जो नेशनलाइज हो गए थे, उनको दोबारा से डी नेशनलाइज करने की पॉलिसी अपनाई और हुकूमत के ऊपर जो बहुत से इदारों का बोझ हो गया था उनको कम करने की कोशिश की और बहुत से प्राइवेट या निजी जो था इदारों को उन्होंने इनकरेज किया ताकि वो लोग भी इसमें काम कर सकें। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत से फिर और भी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और बहुत सी सनतें और बहुत से इदारे कायम हुए। तो ये दिलचस्प बात है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। यकीन जब 1974 को पाकिस्तान के तमाम शेड्यूल्ड बैंक कौमी तहवील में ले लिए गए, उनसे बैंक मुलाजमीन के हालात भी बेहतर हुए। बेहतर क्यों हुए? क्योंकि फिर उनको सरकारी जो ग्रेड हासिल होता था, मुलाजमीन को जो तनख्वाहों के मामला थे, जो उनके रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी थे, जो उनकी पेंशन के मामला थे, वो तमाम तर उसी तरह से फिर होने लगे जिस तरह से सरकारी इदारों का, क्योंकि उनको सरकारी तहवील में ले लिए गए। इससे पहले जब तक वो निजी मलकियत थे तब तक उनके साथ वो सलूक नहीं होता था। मुलाजमीन वहाँ पर भी मेहनत करते थे, लेकिन उसका उन्हें फिर वो समर या वसीला नहीं मिलता था। बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में लेने से हुकूमत को इक़्तिसादी लिहाज से ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचा और रुपया अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होने लगा। तो अजीज तलबा, हमने देखा कि किस तरह से जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की कि अवाम की फलाह के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए इब्तदाई दौरे हुकूमत में उन्होंने मुख्तलिफ निजी जो कंपनियां थीं, सनतें थीं, उनको सरकारी तहवील में लिया और उसके पीछे जो उनका नज़रिया यह था कि वहाँ पर काम करने वाले लोगों को वहाँ पर ज़्यादा बेहतर सहूलियत दे सकें, बिल्कुल उस तरह जिस तरह दीगर सरकारी महकमों में काम करने वाले लोगों को
دی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ وسائل جو لوگوں نے ذاتی وسائل بنائے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے حکومت کے زیر انتظام ہوں، اور حکومت چونکہ عوام کی حکومت ہے تو وہ سارے وسائل عوام کے قبضوں میں آئیں، نہ کہ کسی خاص خاندان یا اشرافیہ کے ہاتھ میں ہوں۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور حکومت میں جو معاشی اصلاحات کی گئیں اس کے یہ پہلے 2 نکات تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اصلاحات کی ہیں، زرعی اصلاحات بہت امپورٹنٹ، اور لیبر اصلاحات، یہ تو بہت ہی اہم عنوانات ہیں جن کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔